Hi students, in this lecture we are going to see one important point, that is one important formula of trigonometry for JEE. This formula is very important to solve the questions of this type, and these questions are also very important and useful in JEE exam. So see the application of this formula to solve the problems of JEE. So my formula is cos of theta into cos of 2 theta into cos of 2 square theta into cos of 2 cube theta into cos of 2 to the power 4 theta into cos of 2 to the power 5 theta up to cos of 2 to the power n minus 1 theta is equal to, so the result of this formula is sin of 2 to the power n theta upon 2 to the power n into sin theta. तो इस फॉर्मूले को हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये हमें इस वीडियो लेक्चर में देखने का है. सो द माय फर्स्ट प्रॉब्लम इज साइन ऑफ 8a. तो वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 8a अपॉन साइन a इज गिवन एज k इंटू कॉस a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a. देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो आंसर मैंने पहले से लिखा है, हियर वैल्यू ऑफ k इज 8. So we will prove this all these results. Actually these are the problems of JEE. इसके आंसर्स मैंने पहले लिखे हैं. So we will prove that if this sin of 8a upon sin a equal to k cos a into cos 2a into cos 4a, then k equal to 8. Now by observing this result and this problem number 1, in this question right hand side has the expression cos a into cos 2a into cos 4a. So I will write this expression cos a into cos 2a into cos of 4a. So this can be written as cos a into cos of 2a into cos of 4a is 2 square a. Now how to apply this formula? My given left hand side is cos theta into cos of 2 theta into cos of 2 square theta up to cos of 2 to the power n minus 1 theta. So here power of 2 is n minus 1, and here sin of 2 to the power n theta upon 2 to the power n sin theta. तो यहाँ लास्ट जो टर्म है उसका 2 का जो पावर है n माइनस 1 है और यहाँ का 2 का पावर n है, तो हमें एक पावर बढ़ा के लेने का है. यहाँ पे देखिए n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 टू द पावर n. सो लाइक दिस, यहाँ पे 4a यानी 2 स्क्वायर a है, तो हमें 2 क्यूब लेने का है. वी हैव टू इंक्रीज द पावर ऑफ 2 बाय 1. एक से पावर इंक्रीज करने का है. सो दिस विल गिव साइन ऑफ 2 टू द पावर n यानी 2 क्यूब a अपॉन 2 क्यूब इंटू साइन. सो दिस इज कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 theta into cos of 2 square theta equal to sin of 2 cube theta upon 2 cube sin theta. एक से पावर हमने बढ़ा के लिया है. So this will be cos of a into cos of 2a into cos of 2 square a. So 2 square a is 4a equal to, ये बन जाएगा sin of 8a upon 8 sin a. And therefore this 8 into cos a into cos of 2a into cos of 4a is equal to sin of 8a upon sin a. So therefore if sin of 8a upon sin a equal to k cos a into cos 2a into cos 4a, so value of k is 8. So this is very simple problem. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है. बाय रेगुलर मेथड, बाय एप्लीकेशन ऑफ साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. हियर आई हैव टू प्रूव दैट कॉस ऑफ पाई बाय 5 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 5 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाय 5 इंटू कॉस ऑफ 8 पाई बाय 5 इक्वल टू माइनस 1 बाय 16. सो सी द सेकेंड problem, and here it is given that cos of 5 into cos of 2 pi by 5. Second one is
cos of pi by 5 into cos of 2 pi by 5 into cos of 4 pi by 5. So cos of 4 pi by 5 is cos of 2 square pi by 5. This is 2 to the power 1 pi by 5. This is 2 to the power 0 pi by 5. 2 to the power 1 pi by 5. Cos of 4 pi by 5 is 2 square pi by 5. Now see this term, cos of 8 pi by 5 is cos of 2 cube into pi by 5. So again this expression is in this form, that is cos theta into cos of 2 theta into cos of 2 square theta up to cos of 2 to the power n minus 1 theta. So this expression is in this form. So my right hand side will become sine of 2 to the power n plus 1. So 3 plus 1 2 to the power 4 into theta is pi by 5 upon 2 to the power 4 into sine of pi by 5. So this will become sine of 2 to the power 4 is 16 pi by 5 upon 16 of 16 into sine of pi by 5. Now my here answer is minus 1 by 16. तो minus 1 by 16 यहाँ पे कैसे आएगा? So we have to use allied angle formula. So sine of 16 pi by 5 can be written as pi plus pi by 15. Pi here angle is 16 pi by 5. So it is pi plus pi by 15 pi plus pi, that is 16 pi by 5 and here the angle is pi by 5. तो मुझे इस pi by 5 के फॉर्म में इसे लिखने का है. So I will write it as pi plus 3 pi plus pi by 5. So I think it is got matched. 15 pi 3 pi into 5 15 pi plus pi, that is 16 pi by 5. 15 pi plus pi 16 pi by 5 upon 16 into sine of pi by 5. Okay. Now this is sine of 3 pi plus theta. 3 pi plus theta is in third quadrant. So in third quadrant sine is negative. So it is minus sine of pi by 5 upon 16 into sine of pi by 5. So this minus pi by 5 sine of pi by 5 will get cancelled and my answer is minus 1 by 16. तो यहाँ पे मुझे एडजस्ट करने का था ए एंगल 16 पाई बाय 5, उसको मैंने लिखा है 3 पाई प्लस पाई बाय 5, 15 पाई प्लस पाई 16 पाई बाय 5 एंड साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो इस तरह से साइन ऑफ पाई बाय 5 की टर्म कैंसिल हो गई है एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माइनस 1 बाय 16. So the result is very good and the problems like this can be easily solved using this important result. See the third, तो सभी प्रॉब्लम्स इतने इजीली इस फॉर्म में नहीं आते हैं, कुछ कुछ एडजस्टमेंट करके हमें इन प्रॉब्लम्स को इस फॉर्म में लाना पड़ता है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि मुझे इस फॉर्मूले को इजीली अप्लाई करते आना चाहिए. सो इन थर्ड माय गिवन एक्सप्रेशन इज cos of pi by 11 into cos of 2 pi by 11 into cos of 3 pi by 11 into cos of 4 pi by 11 into cos of 5 pi by 11. तो पहले इसमें cos थीटा, cos of 2 थीटा, cos of 4 थीटा, cos of 8 थीटा, ऐसे टर्म्स हम पहले देखेंगे. ऐसे टर्म्स हमें कहाँ पे मिलते हैं. सो हियर स्टूडेंट्स, cos of pi by 5 is theta, cos of pi by 11 is theta, cos of 2 pi by 11 is 2 theta, cos of 4 pi by 11 is cos of 4 theta.
तो ये 3 टर्म्स हमें मिल गए हैं, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 4 थीटा, 4 थीटा यानी 2 स्क्वायर थीटा। सो नाउ व्हाट अबाउट दिस कॉस ऑफ 3π/11 एंड 5π/11? तो इसमें भी हमें आगे के टर्म्स इन दोनों टर्म्स से तैयार करने पड़ेंगे। सो व्हाट इज कॉस ऑफ 3π/11? तो पहले हम कॉस ऑफ 3π/11 को सॉल्व करते हैं। सो कॉस ऑफ 3π/11 कैन बी रिटर्न एज कॉस ऑफ पाई माइनस 8π/11। देखिए मैच होता है कि नहीं, 11π माइनस 8π दैट इज 3π, सो इट विल बी 3π/11। नाउ cos of pi minus theta, second quadrant cos is negative, so cos of pi minus theta is minus cos of theta, so it is minus cos of 8π/11. So this cos of 3π/11 can be written as minus cos of 8π/11. तो cos of theta, 2 theta, 4 theta, 8 theta भी मुझे मिल गया है। Now what to do with the cos of 5π/11? So this is cos of 5π/11. अब मुझे 16π/11 लाने का है। तो हाउ टू ब्रिंग 16π/11? कॉस ऑफ 5π/11 को मैं कॉस ऑफ माइनस 5π/11 लिख लेता हूँ। सो इट इज़ कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो कॉस ऑफ 5π/11 को मैं कॉस ऑफ माइनस 5π/11 लिख सकता हूँ। एंड नाउ दिस इज कॉस ऑफ पाई माइनस 16π/11। नाउ हियर 11π minus 16π is minus 5π. 11π minus 16π is minus 5π/11. So this cos of pi minus theta is again minus cos theta, so it will minus cos of 16π/11. तो मैं cos of 5π/11 ये जो लास्ट टर्म है उसे लिख सकता हूँ माइनस cos of 16π/11. Now see my problem. Here cos of pi/11 into cos of 2π/11 into this cos of 2 square, 4 को मैं 2 square लिख रहा हूँ, π/11 into cos of 3π/11 को मुझे माइनस cos of 8π/11, so it is 2³ π/11 इंटू लास्ट का टर्म है मेरा cos of 5π/11, तो उसे मुझे लिखने का है माइनस, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, एंड दिस cos of 5π/11 इज नाउ माइनस, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो cos of 16π/11 तो ये बन गया 2 to the power 4 π/11. ओके, तो इस तरह से मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मूले के फॉर्म में लानी पड़ेगी ताकि मुझे फार्मूला राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो अप्लाई करते आनी चाहिए. सो नाउ द फार्मूला इज दिस cos थीटा इंटू cos of 2 थीटा, cos of 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos of 2³ थीटा इंटू cos of 2 to the power 4 थीटा. तो एक n मुझे इंक्रीज करने का है 2 to the power n minus 1 is 4, so n will be 5, so 2 to the power 5, so here theta is π/11. Theta is π/11. Okay, so here π/11 sin of 2 to the power n theta upon 2 to the power n 2 to the power 5 π/11. तो ये बन गया sin of 32 π/11 by 32 into sin of theta, so it is sin of π/11. Okay, now how to express 32 π/11 in the form of π/11? तो इसे भी हम अलाइड एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे. सो 32 π/11 इसे लिखते हैं 33 π, सो इट इज 3 π माइनस π/11. 33 π माइनस π 32 π/11 अपॉन 32 into sin of π/11. Okay, now this sin of 3 π minus theta, it is second quadrant. In second quadrant sin is positive, so this will be sin of π/11 upon 32 sin of π/11. So like this sin of π/11 will get cancelled, and answer to this question is 1/32.
So 1/32 is the answer to question number 3. Now see the question number 4. Here is starting में मुझे एंगल दिया है cos of 2π/15. Question number 4, cos of 2π/15 इंटू cos of 4π/15 किस तरह से हम एंगल एडजस्ट कर सकते हैं. So here in fourth, cos of 2π/15 into cos of 4π/15 into cos of 8π/15 into cos of 14π/15. Now see here, cos of 2π/15, 4π/15, 8π/15 ये सारे एंगल्स 2 के मल्टीपल में हैं. दैट इज़ 2 थीटा, 2 स्क्वायर थीटा, 2 क्यूब थीटा. लेकिन ये 14π/15 इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है. सो सी दिस टर्म cos of 14π/15. कैन आई राइट cos of 14π/15 एज cos of π minus π/15. सो पाई माइनस π/15, 15π माइनस पाई 14π/15 हो जाता है. सो cos of π माइनस थीटा इज अगेन माइनस cos of थीटा, सो इट इज़ माइनस cos of π/15. ओके, सो दिस कैन बी रिटन cos of 14π/15 इज माइनस cos of π/15. नाउ सी द प्रॉब्लम. दिस cos of 14π/15 इज माइनस cos of π/15. इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया है, माइनस cos of π/15 इंटू दिस टर्म cos of 2π/15 इंटू cos of 4 यानी 2 स्क्वायर π/15 cos of 8π/15 यानी 2 क्यूब π/15. नाउ द प्रॉब्लम इज एडजस्टेड. cos of थीटा इंटू cos of 2 थीटा इंटू cos of 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos of 2 क्यूब थीटा इज माइनस साइन ऑफ 2 टू द पावर n. एक पावर इंक्रीज करने का है 2 का, सो इट विल बी 2 टू द पावर 4 π/15 अपॉन 2 टू द पावर 4 साइन ऑफ π/15. सो दिस विल बी माइनस साइन ऑफ 16 π/15 बाय 16 इंटू साइन ऑफ π/15. मुझे अब पाई से कनेक्ट करना पड़ेगा 16π/15 एंड π/15. सो अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो माइनस एज इट इज, सो दिस इज साइन ऑफ 16π/15 इज पाई प्लस π/15. 16π/15 इज पाई प्लस π/15, 15π प्लस पाई 16π/15 अपॉन 16 इंटू साइन ऑफ π/15. So this minus sin of pi plus theta, sin of pi plus theta is in the third quadrant, sin is negative, so it is again minus sin of pi plus theta is minus sin theta, so it is minus sin of π/15 upon 16 into sin of π/15. So minus minus plus and this sin π/15 will get cancelled, and answer to this question is 1/16. So like this we will use the result. See the next problem number 5. This problem is also very important. इसमें बहुत सारे टर्म्स है साइन के. साइन ऑफ π/14, साइन ऑफ 3π/14, 5π/15, 7/14, 9π/14, 11π/14, 13π/14. तो किस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, तो इसके एंगल्स हमें इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने के हैं. तो हम कैसा लिख सकते हैं. सो सीधा क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ π/14, साइन ऑफ 3π/14, साइन ऑफ 5π/14, साइन ऑफ 7π/14. तो आप इसे देख रहे होंगे साइन ऑफ 7π/14 इज साइन ऑफ π/2. दिस इज साइन ऑफ
पाई बाई टू 7/14 1/2 साइन ऑफ पाई बाई टू हो जाएगा। सो दिस साइन ऑफ पाई बाई टू विल बिकम 1। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ऐसे एंगल हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर एंगल हम ऑब्जर्व करते हैं, साइन का यहाँ का एंगल है π/14 और ये 13 π/14, तो 13 π/14 प्लस π/14 पाई होता है। सो फर्स्ट एंड लास्ट एंगल ऑफ साइन इज सप्लीमेंट्री, इनकी सम पाई है। नेक्स्ट देखेंगे 11 π/14 प्लस 3 π/14 इज 14 π/15, तो इन दोनों की सम भी पाई आती है। और 5 π/14 प्लस 9 π/14 दिस इन दोनों की सम भी पाई आती है। तो मैं इस लास्ट एंगल से स्टार्ट करता हूँ। इसे मैं π/14 और इसे मैं 3 π/14 और इसे मैं 5 π/14 के फॉर्म में लिखूँगा। तो इसकी वैल्यू तो 1 है। नाउ सी ऑब्जर्व दिस टर्म साइन ऑफ लास्ट टर्म साइन ऑफ 13 π/14 इज साइन ऑफ पाई माइनस π/14, 14 पाई माइनस पाई 13 π/14। सो इट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन ऑफ π/14 बन जाएगा। तो इस साइन ऑफ 13 π/14 को मैं साइन ऑफ π/14 लिख सकता हूँ। नाउ सी दिस टर्म साइन ऑफ 11 π/14, साइन ऑफ 11 π/14 इज साइन ऑफ पाई माइनस 3 π/14। Is it right? 14 pi minus 3 pi 11 pi. So sin of pi minus theta is again sin theta, तो ये बन जाएगा sin of 3 pi/14। तो इसका भी वैल्यू मुझे मिल गया है। sin of 11 pi/14 को मैं sin of 3 pi/14 लिख सकता हूँ। Now see the term sin of 9 pi/14, sin of 9 pi/14 is sin of pi minus 5 pi/14। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सभी प्रॉब्लम्स की आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी समझ में आएगा कि कौन से एंगल सप्लीमेंट्री है, कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। तो पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा के फॉर्म में इंटरचेंज करते आना चाहिए, तभी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो here is sin of 9 pi/14 is sin of pi minus 5 pi/14, again this is sin of pi minus theta sin of 5 pi/14। तो ये sin of 9 pi/14 को भी मैंने sin of 5 pi/14 लिखा है, इसकी वैल्यू तो 1 है। अब देखिए sin of pi/14 और ये भी sin of pi/14 है लास्ट वाली टर्म। तो गिवन प्रॉब्लम मुझे इस तरह से मिल जाएगा, sin of pi/14 into sin of 3 pi/14 into sin of 5 pi/14। अब 13 pi/14 को मैंने pi/14 लिखा है। 11 pi/14 इज sin of 11 pi/14 इज sin of 3 pi/14 एंड sin of 9 pi/14 इज sin of 5 pi/14। तो ये तीन टर्म्स फिर से यही मिलेंगे, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा। आर यू वेटिंग और नॉट? साइन ऑफ pi/14 इंटू ये भी साइन ऑफ pi/14 है, साइन ऑफ 3 pi/14 तो ये भी साइन ऑफ 3 pi/14 है, ये साइन ऑफ pi/14 तो ये भी साइन ऑफ 5 pi/14 है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है इन 3 स्टेप्स में। तो इसका होल स्क्वायर हो गया, लेकिन फार्मूला तो कॉस में है, फार्मूला हमें कॉस में है, तो ये सभी टर्म्स हमें फिर से कॉस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। नाउ सी हियर हाउ टू कन्वर्ट ऑल दिस टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो ये स्टेप आपको समझ में आई होगी। मैं अब इन तीनों टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। सी राइट डाउन दिस स्टेप, मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब मेरा प्रॉब्लम यहाँ तक आ चुका है। नाउ सी हियर साइन ऑफ pi/14, अब इसे मुझे कॉस में कन्वर्ट करने का है, तो साइन ऑफ थीटा इज कॉस ऑफ pi/2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ pi/2 माइनस थीटा इज pi/14, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 7 पाई माइनस पाई 6 pi/14 एंड कॉस ऑफ 6 pi/14 1 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब साइन ऑफ 3 pi/14,
साइन थीटा इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज 3 पाई बाय 14, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 7 पाई माइनस 3 पाई कॉस ऑफ 4 पाई बाय 14. ओके, एंड द लास्ट इज साइन ऑफ 5 पाई बाय 14, तो इसे भी मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14, तो ये बन जाएगा 7 पाई माइनस 5 पाई 2 पाई बाय 14. ओके, तो 2 पाई बाय 14 यानी 2 थीटा हो जाएगा, ये 4 थीटा, ये 2 थीटा. अब इसका मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले में नहीं बैठता है. 2 स्क्वायर 2 क्यूब नहीं है, ये 6 को मैं 2 स्क्वायर 2 क्यूब इस फॉर्म में नहीं लिख सकता. तो फिर से इसे मैं चेंज करता हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस 8 पाई बाय 14 पाई माइनस 8 पाई 6 पाई आ जाएगा. सो अगेन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस ऑफ 8 पाई बाय 14 हो जाएगा. सो आर यू गेटिंग दिस स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ इसे मैं थीटा कंसिडर करूँगा तो ये 2 थीटा ये हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो देखिए साइन ऑफ पाई बाय 14, सो दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 14 हियर. अब देखिए दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. Now see here, sine of this is sine cos of 2 पाई बाय 14. ओके, तो ये साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 को मेरे को लिखने का है cos ऑफ 2 पाई बाय 14. अब साइन ऑफ 3 पाई बाय 14 को मुझे लिखने का है cos ऑफ 4 पाई बाय 14, एंड साइन ऑफ पाई बाय 14 को मुझे लिखने का है माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 8 पाई बाय 14 और इसका होल स्क्वायर. यस, ना उस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो ये बनेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय 14. अब ये 4 पाई बाय 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 पाई बाय 14, 2 टाइम्स 2 पाई बाय 14, और ये कॉस ऑफ 8 पाई बाय 14 को लिखूँगा मैं 2 स्क्वायर इंटू 2 पाई बाय 14 एंड इसका होल स्क्वायर. ओके, ये 8 पाई बाय 14 है, ये 4 पाई बाय 14 है, और ये 2 पाई बाय 14 है, और माइनस का स्क्वायर प्लस है. अब देखिए कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तक तो आ गया है. पावर 1 से इंक्रीज करने का है तो 2 क्यूब लेना पड़ेगा. तो साइन ऑफ 2 क्यूब क्या होता है 8 इंटू थीटा बनेगा 2 पाई बाय 14 अपॉन फिर से 8 2 क्यूब इंटू साइन ऑफ 8 थीटा अपॉन 8 साइन थीटा, दैट इज 2 पाई बाय 14. ओके, और फिर से इसका स्क्वायर है. अब देखिए ये बनेगा साइन ऑफ 16 पाई बाय 14 अपॉन 8 साइन ऑफ 2 पाई बाय 14 का स्क्वायर. ओके, अब 16 पाई बाय 14 को 2 पाई बाय 14 के फॉर्म में मुझे लिखने का है. सो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 पाई माइनस, या मैं इसे लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई बाय 14. 16 पाई बाय 14 देखिए किस तरह से एडजस्ट किया है, पाई प्लस 2 पाई बाय 14, 14 पाई प्लस 2 पाई, 16 पाई बाय 14 अपॉन 8 इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय 14 और इसका स्क्वायर. अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा 14 पाई प्लस 2 पाई 16 पाई, सो दिस विल बिकम माइनस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाय 14 इंटू 8 साइन ऑफ
2π/14 और उसका होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, -1/8 का स्क्वायर मिलेगा 1/64। सो 1/64 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो फिर से मैं एक बार इसे रिपीट करता हूँ। साइन ऑफ 13π/14 इज साइन ऑफ π/14, साइन ऑफ 11π/14 इज साइन ऑफ 3π/14 एंड साइन ऑफ 9π/14 इज साइन ऑफ 5π/14। तो ये तीन टर्म्स जो हैं यहाँ से रिपीट हो गए हैं, तो उसका स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। अब इन तीनों साइन को मैंने साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा से चेंज किया है। सिर्फ इसमें कॉस ऑफ 6π/14 मिल रहा था, वो फॉर्मूले में एडजस्ट नहीं होता, तो फिर से कॉस ऑफ 6π/14 को कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखा है, पाई माइनस 8π/14 तो -8π/14। तो ये 2π/14 थीटा है, ये 2 थीटा और ये 2 स्क्वायर थीटा एडजस्ट हो गया है। और फिर से मैंने राइट हैंड साइड के फॉर्म में इसे लिख के सिंप्लीफाई किया है। सो द प्रॉब्लम इज़ वेरी गुड। तो आप इसे प्लीज़ अच्छी तरह से फिर से एक बार देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। एंड नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन ऑल द टर्म्स आर इन कॉस। सो सी हियर, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऑल द टर्म्स ऑलरेडी आर इन कॉस, तो हमें ज़्यादा कुछ इसको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूले के जो एंगल्स हैं थीटा 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा, ये एंगल्स हमें इसमें फाइंड आउट करने की। सो हियर लास्ट एंड बेस्ट प्रॉब्लम, तो इसे हम अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं। कॉस ऑफ π/15, π/15 नो प्रॉब्लम, 2π/15। अब 2π/15 के बाद 2 स्क्वायर यानी 4π/15 ये एंगल। सो दिस टर्म, इन तीनों टर्म्स का मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 6, कॉस ऑफ π/15, ये कॉस थीटा है। कॉस ऑफ 2π/15 ये 2 थीटा है, राइट। कॉस ऑफ 4π/15, तो ये कॉस ऑफ 2 स्क्वायर π/15 है। यहाँ तक मैं आ गया। अब देखिए कॉस ऑफ 3π/15, तो इसे मैं एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ एडजस्ट। अब ये कॉस ऑफ 3π/15, ये थीटा है तो इसका डबल है, ओके। तो ये कॉस ऑफ 3π/15 इंटू कॉस ऑफ 6π/15, तो इसे मैं 2 टाइम्स 3π/15 लिख सकता हूँ। 6π/15 2 टाइम्स 3π/15, तो कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। अब लास्ट, अब देखिए इसे भी मैंने एडजस्ट किया है, इसे भी एडजस्ट किया है। लास्ट टर्म में मुझे बचता है कॉस ऑफ 7π/15। सो 7π/15 को मुझे किस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे उसे हम एडजस्ट करेंगे। कॉस ऑफ 7π/15, कॉस ऑफ 7π/15 इज कॉस ऑफ पाई माइनस 8π/15, 15π माइनस 8π, 7π/15, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए कॉस ऑफ 7π/15 को मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस ऑफ 8π/15, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब π/15, राइट। कॉस ऑफ π/15 ये यहाँ पे है, कॉस ऑफ 2π/15 ये टर्म है, कॉस ऑफ 4π/15 ये टर्म है, कॉस ऑफ 7π/15 यानी कॉस माइनस कॉस ऑफ 8π/15। तो 8π/15 को मैंने लिखा है 2 क्यूब π/15, और इसका माइनस साइन पहले लिख लिया है। अब ये दो टर्म्स लिखता हूँ, कॉस ऑफ 3π/15 इंटू कॉस ऑफ 6π/15। तो 6π/15 को लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स 3π/15 इंटू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 5π/15।
तो 5π/15 क्या है, π/3। दिस एंगल इज π/3, cos 60 कितना होता है, 1/2। ओके, तो इस तरह से ये टर्म्स एडजस्ट होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार देखिए, cos ऑफ π/15, 2π/15, 4π/15 एज इट इज़। 7π/15 को 8π/15 में एडजस्ट किया है तो वो 2³ π/15 बन गया है। ये 3π/15 और ये 2 टाइम्स 3π/15, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है 2 टाइम्स है, स्क्वायर नहीं है, 2 टाइम्स 3π/15 और ये साइन ऑफ cos ऑफ 5π/15 इज cos ऑफ π/3, cos 60 इज 1/2। तो एक ही स्टेप में मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला माइनस साइन ऑफ, ये माइनस एज इट इज साइन ऑफ, अब टर्म 2³ पे है तो 2⁴ थीटा होगा। 2⁴ n की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, तो 2⁴ क्या होता है, 16। तो ये बनेगा 16 और थीटा कितना है, π/15 अपॉन फिर से 2⁴ यानी 16 इंटू साइन ऑफ π/15। तो ये मुझे मिल गया है इसका रिज़ल्ट। अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, 3π/15, हियर थीटा इज 3π/13, ये 2 थीटा है, तो ये 2⁴ है तो 2 स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो साइन ऑफ 2 स्क्वायर कितना है, 4 इंटू 3π, तो ये बन जाएगा 12π/15 अपॉन 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू साइन ऑफ 3π/15 और लास्ट में cos ऑफ π/3 की वैल्यू 1/2। 2³ 2⁴ 16, थीटा इज π/15, ये 2⁴ तो ये 2⁴2 स्क्वायर इंटू 3π/15, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12π/15 अपॉन साइन ऑफ थीटा कितना है, 3π/15 इंटू ये लास्ट का 1/2। ओके, अब देखिए ये बन गया -1/16। अब सिर्फ एंगल एडजस्ट करने के हैं, तो ये साइन ऑफ 16π/15 इज π + π/15 अपॉन साइन ऑफ π/15, साइन ऑफ 12π/15 इज साइन ऑफ, इसे 3π/15 के फॉर्म में लिखने का है। तो कैन आई राइट दिस एज 15π यानी π माइनस 3π/15। देखिए 12π/15 इज π माइनस 3π/15, 15π माइनस 3π इज 12π/15 अपॉन 4 इंटू साइन ऑफ 3π/15 इंटू दिस 1/2। ओके, सो साइन ऑफ π प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन ऑफ π/15 और ये साइन ऑफ π/15 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा 1/16। साइन ऑफ π माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 एंड दिस इज 1/2। यहाँ का माइनस और ये माइनस प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो सेम ही है, कैंसिल 1/4 1/2। सो दिस इज 1/128 is the answer to this question number 6. So students, this result is very important, and the problems which I have taken here, these problems are also very important. तो आप इस फॉर्मूले को प्लीज़ नोट कर लीजिए, इन सभी प्रॉब्लम्स को भी आप नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के प्रॉब्लम को मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, किस तरह से मैंने एंगल एडजस्ट किए हैं, वो भी आप समझ लीजिए। और फिर से एक बार आप अपने तरीके से, आप अपने मन से इसको सॉल्व करके देखिए, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट ध्यान में, माइंड में से फिट कर लीजिए, cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा इंटू cos ऑफ 2³ थीटा अप टू cos ऑफ 2⁻n-1 थीटा इज, इसको ध्यान में रखने का है। साइन ऑफ 2⁻n थीटा अपॉन 2⁻n साइन थीटा, ये साइन का एंगल है 2⁻n थीटा अपॉन 2⁻n साइन थीटा। तो ये लास्ट की टर्म जो है 2 का पावर, उसको एक टर्म, एक
पावर 2 का इंक्रीज करके लेने का है और एंगल किस तरह से एडजस्ट करने के हैं, इसीलिए मैंने ये सभी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाए। ये तो इजी प्रॉब्लम्स है, इसमें एंगल एडजस्टमेंट ऑलरेडी एंगल एडजस्ट है, थीटा है, 2 थीटा है, 2 स्क्वायर थीटा है, ये 2 क्यूब थीटा है, तो ये तो इजी है। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स में एंगल की एडजस्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, okay, now we'll stop here and we will be again back with some important tricks of trigonometry. Okay, bye.